उसने मुझे कंस्ट्रक्शन साइट पे लेके गया एंड वहाँ पे एक ब्रिक होती है. Yes. तो ब्रिक को कितने कॉर्नर होते हैं? 4 डाउन साइड 4 अप साइड, तो 8 कॉर्नर्स eight होंगे. होते हैं ना? यस. उस 8 कॉर्नर में से एक कॉर्नर पे मुझे वो ब्रिक खड़ी करनी थी. हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ है बैलेंस आर्टिस्ट गौतम वैष्णव सर. वेलकम सर, कैसे हो आप? आय एम अमेजिंग. खूप भारी वाटतंय अँड झकास हूँ मैं. Yes. Okay, sir, I just want to first of all know, like, what was your exact journey? Because as I saw your profile and how much ever I know about you, कि आपने बॉक्सिंग भी किया है, आपने आईटी में जॉब भी किया है एंड रॉक बैलेंसिंग भी आया है. तो कैसे वो सीक्वेंस था एंड कहाँ से शुरुआत हुई एग्जैक्टली? मैंने चालू किया था बॉक्सिंग इन द ईयर 2008 या 9. ओके. And I played for 5 years and I did it till 2014. ओके. And उसके बाद में I went to Mumbai with to live with my mom and dad, and then I did around 4 to 5 jobs there. I was working in Red Chillies, Shah Rukh Khan ji company, and then I worked in a magazine company. ओके. Then I worked in travel and trek industry where I was the owner of my company. Okay. Called as Trek Raw. ट्रैक रॉ. ओके. Raw because my friends used to call me Ranti. रांटी, कारण तुम लाइक यू आर वॉन्डरिंग एवरीवेयर. Yes. दैट्स व्हाई. So Trek and Raw. Yes. So trekraw.com. Trek Raw, okay. You can still go and see some blogs where I've showed how you can trek in 200 rupees or 100 rupees Oh. from Mumbai. And after that COVID hit, so I stopped. Okay. And then I started working as a digital marketer in Pune for 2 Okay. years, and with that only I also started rock balancing. So the first time when I did rock balancing was like I did a Vipassana course of 10 days, and the day I came out, so it was like afternoon, and I met a friend of mine. His name is Chintan Vaishnav. ओके. And I was just sitting in front of me and I just said कि यार तू Instagram दे ना मेरे को. तो I just took his Instagram. I was scrolling down. So, आप किसी दूसरे का इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे थे? हाँ, उसके सामने ही. उसके सामने ही, हाँ. और नीचे उसने रॉक्स लगाए थे. ओके. वो कर रहा था या? अच्छा, ओके. उसने हाँ. पोस्ट डाला था. हाँ. तो मैंने बोला यार ये फेक है, ऐसा हो ही नहीं सकता है. यार तुम गम लगाया है या फिर कैमरा ट्रिक है या कुछ तो है. यस. ठीक है. तो उसने बोला नहीं यार ऐसा नहीं है, ये किया है, बैलेंस होता है. तो उसने मुझे कंस्ट्रक्शन साइट पे लेके गया एंड वहाँ पे एक ब्रिक होती है. Yes. तो ब्रिक को कितने कॉर्नर होते हैं? 4 डाउन साइड 4 अप साइड, तो 8 कॉर्नर्स होंगे. यस. उस 8 कॉर्नर में से एक कॉर्नर पे मुझे वो ब्रिक खड़ी करनी थी. ओके. तो खड़ी करने में मुझे गुस्सा आ रहा था, मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रहा था. मुझे एक वक्त पे ऐसा लग रहा था कि ईंट के 2 टुकड़े करके उसके सिर पे ही मार दूं. और वो रुका हुआ था वहाँ पे? हाँ, वो भी तो कर रहा था. पूरी देर ही वाज वाचिंग यू. ओके. He was also doing it, na? Yes, He was not seeing me only. He was Okay. doing his rock Okay, balancing. okay. And I was struggling with the break. योर ओन ब्रेक. हाँ. And I was sitting there for 45 minutes. I was only able to sit there for 45 minutes only because I did Vipassana. यस. Okay. So 10 days I was not talking, मॉन. no reading, no writing. नो मोबाइल्स. Nothing. And the day I came out, I just got rock balancing in front of me. So I was sitting there for 45 minutes. And after 45 minutes, when the brick got balanced, I literally felt like a butterfly. My both legs were in the air. I felt like a monk. लाइट हार्टेड. Yes. And from that day, I'm just experiencing that again and सेम again. फीलिंग. again. यस, मुझे वही Not पूछना same था. feeling, but different feeling, but at different levels. डिफरेंट लेवल्स. यस सर. ओके, रॉक्स पे तो आएंगे, बट मुझे ये एक बेसिक चीज़ पूछनी है कि जो आपने बॉक्सिंग का बोला दैट यू स्टार्टेड बॉक्सिंग पहले, तो वो बॉक्सिंग स्टार्ट करने के पहले आपका पैशन था? क्योंकि ऐसे ही कोई बॉक्सिंग में जाएगा नहीं. एंड अगर वो आपका पैशन था देन व्हाई आपने उसको कंटिन्यू क्यों नहीं किया आगे? Okay. बिकॉज आपने कॉम्पिटिशन्स भी खेल चुके थे आप. I started doing boxing in college days. Yes. 11th standard. कॉलेज में पुणे में ही थे आप कॉलेज के लिए? Yes. I was in Wadias. वाडिया. Navroji Wadia. यस.
एंड हमारे यहाँ पे एक मेरे सर जो है जिनका नाम ऋषिकेश निकालजे है, एंड वो एक गार्डन में एक्सरसाइज लेते थे बच्चों के लिए, Okay. ऐसे ही नॉर्मल, कुछ ऐसा प्रॉपर कोच जैसे नहीं, बट आई यूज टू सी इट. तो एक बार मैं वो मतलब वो जाली होती है ना, जाली में से मैं देखता था रोज. तो उन्होंने एक बार बोले कि अरे आजा तू भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है. ओके. सो एज अ स्टूडेंट मैं कभी भी एक गधे जैसा रहता हूँ कि जो मेरे कोच बोलेंगे वो मैं कर लूंगा, मुझे कुछ प्रश्न नहीं पूछने. जब मुझे आ जाएगा तब मैं प्रश्न पूछूंगा. ठीक है, वेरी सिंसियर स्टूडेंट. हाँ, यस. Yes. तो वो बोलते थे 1000 स्किप मारो तो 1000 मारो, हाँ 200 एब्स मारो तो 200 एब्स मारो. फिर जो भी अभी कैलिस्थेनिक होता है तो वैसा हमारे सर वहाँ पे लेते थे तब, लाइक क्रोकोडाइल वॉक, डक वॉक, लायन वॉक, फ्रॉग जंप, जितने भी वॉक्स होते हैं उतने हम वॉक्स करते थे. यस. एंड एक टाइम पे ऐसा हो गया कि उनका जो जहाँ पे प्लेस थी वो निकल गई थी, एंड ही हैड नो प्लेस टू डू द क्लासेस. तो आई यूज टू ट्रेन ऑन टार रोड. हाँ, क्योंकि वो सोसाइटी, ये सारे काइंड ऑफ वॉक्स आप वहाँ पे करते थे? हाँ, टार रोड पे. बाप रे. एंड एब्स भी उस पे ही मारते थे. एंड मैं कभी कुछ लेके नहीं जाता था मैड बिट, आई वाज अ लेजी पर्सन. ओके. तो मैं मेरा शर्ट निकाल देता था और रोड पे बिछा देता था, एंड देन आई यूज्ड टू डू एक्सरसाइज. सो बेसिकली आई फील दैट उस टाइम पे मुझे बहुत मज़ा आता था एक्सरसाइज करना, कि आई लव माई सेल्फ लॉट, क्योंकि मैंने मेरे प्राइम डेज बहुत अच्छे काम के लिए दिए थे. Yes. जो 5 साल कंटिन्यूस मैंने एक्सरसाइज की थी. सो आई जो भी मैं हूँ लाइक फिजिकली या mentally also is because of that sir of mine. His name is Rishikesh Nikalje. Yes. And so if you sit with me for like 1 hour also, I'll just talk positive about Him. things. Yes. No, about In anything. general, okay. Yes. Yes. It is only because I did boxing. Okay. And he put it in my mind that you should have a positive attitude always. Oh.